حضرات محترم، خطبہ مسئلہ کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا سعادت حاصل کیا ہے۔ لب کشائی کرنے سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بے شک اللہ وحدہ لا شریک موت اور حیات کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچ کرے کہ تم میں کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی عزت والا اور بخشش والا ہے۔ تھوڑی دیر اس آیت کریمہ کے ذیل میں اور حالات حاضرہ کے پیش نظر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج ہم اور آپ قرب و بعد پہ نظر رکھتے ہیں اور تمام جہان کو ایک لمحے میں اپنے ماتھے کے نگاہوں سے دیکھنے کی طاقت اور شعور رکھتے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں جس طرح سے ہمیں اور آپ کو یعنی قوم مسلم کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے اور ہونا پڑ رہا ہے، ہم رسوا کیے جا رہے ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں، اس سے جگ ظاہر ہے اور کوئی بات ہمارے اور آپ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے کہ کس قدر ہمیں اور آپ کو ظالم کے ذریعے سے اور ایک مکمل منصوبے کے تحت ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اور کچھ ہمارے بدعمالیوں کی بنیاد پر بد نصیبی بھی ہے جسے ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، صبح و شام مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حقیقی زندگی کو ہم فراموش کر کے جب اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید برہان رشید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے فراموش کر دیتا ہے تو ہم بندے کو فراموش کر دیتے ہیں اور وہ خود بخود اپنے آپ سے فراموش ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص جب اپنے خالق حقیقی نصیبی اور بدبختی کیا ہوگی کہ ہم اپنی ذات سے ہی ناشنا ہوں اور اپنی ذات سے ہی ہم بھولے بیٹھے ہوں کہ ایک انسان ہو اور اس کے اپنے وجود اور اپنی حیثیت کا اندازہ نہ ہو، عقل و شعور رکھنے والا ہو، ذہن و فکر رکھنے والا ہو اور اسے اپنا ہی اندازہ نہ ہو، اور ہر اس ہجوم کے پیچھے چلتا ہو جہاں اس کو ہجوم نظر آ جائے۔ یہ وہ دور نہیں ہے، یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ہجوم کے پیچھے اور بڑی تعداد کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے، راہ راست کا مسافر بننے کا حکم دیا گیا ہے، حق کا مسافر بننے کا حکم دیا گیا ہے، سچ کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جس جانب ہجوم چل پڑا ہے ہمارا بھی قافلہ اسی جانب چل پڑا ہے، ہماری بھی نگاہیں اسی جانب چل رہی ہیں، ہم بھی اپنی نظریں اسی جانب گھمائے بیٹھے ہیں، جس کی بنیاد پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک دو شخص نہیں بلکہ ایک مکمل قافلہ ہی جو ہے ایک ظالم کے حوالے ہو جاتا ہے، اور ایک قافلہ ہی مکمل ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو اسی صف میں جب حق گو اور سچے جو تھے وہ بھی جب پیچھے ہوتے ہیں
तो उन्हें भी रुसवा और ज़लील ख़ार होना पड़ जाता है। अल्लाह वहदहु ला शरीक कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा फरमाया, और जिंदगी और मौत को पैदा फरमाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जांच करे, वो जो है इम्तिहान ले, वो आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन है जो अच्छा अमल करने वाला है। वरना ये तो दुनिया हमने बनाई है और इसको हम फना कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी और बाकी रहने वाली जात अगर कोई है, वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि अगर बाकी रहने वाली जात है तो अल्लाह वहदहु ला शरीक की जात है, रब ज़ुल जलाल की जात है। अब जरा आप गौर कीजिए तो आपको मालूम होगा कि फिर इस दुनिया में रह क्या जाएगी, फिर बाकी क्या रहेगी। तो मैं आपको बताता चलूं, इस दुनिया में कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। जितनी दौड़ हम लगा लें, जितना हम कूद लें, कुछ नहीं बाकी रहने वाली है। हमें और आपको बिलाखिर उसी कब्र के मंजिल को आबाद करना है और वहीं जाकर के हमें उस मिट्टी के खुराक बन जाना है। एक वक्त मुकर्ररा तक हमें इस जहान में भेजा गया है और इसलिए भेजा गया है कि हम इम्तिहान ले लें कि कौन अच्छा अमल करता है, कौन मुती बन करके जिंदगी गुजारता है, कौन अल्लाह के रसूल को इत्तिबा करता है, कौन उसकी नाखलफी और नाफरमानी करता है। उसके बाद वक्त आएगा और वक्त आने के बाद इस दुनिया को छोड़ करके चले जाना है। एक वाक़या ज़हन में आ रहा है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने एक वाक़या नकल फरमाते हैं कि एक शख्स था जिसको बड़ी कीमती, बहुत कीमती हीरा मिल गया, बहुत कीमती हीरा। और जब उस हीरे को फरोख्त करने के लिए वो जब बाजार में सैर करने लगा, बाजार को गया, तो सारे बड़े बड़े जो है खरीदने वाले ताजिर कहने लगे, इस हीरे की कीमत कोई नहीं दे सकता, ये बड़ी कीमती हीरा है। बड़ी तवज्जो के साथ दिल के कानों से सुनिएगा और इंशाअल्लाह अगर ज़हन व फिक्र में इस बात को आपने उतार लिया तो दुनिया और आखिरत, ये जिंदगी और वो जिंदगी दोनों आबाद हो जाएगी। वहां जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस हीरा पाने वाले शख्स ने जब बाजार में गश्त किया और सैर किया और सारे ताजिरों ने कहा कि इसकी जो असल कीमत है इस पूरे बाजार में कोई नहीं दे सकता है, तो लोगों से उसने मशवरा किया फिर इस हीरे को लेकर के किस मकाम पे जाए, कहा जाए, हमें इसकी कीमत चाहिए और हकीकी कीमत चाहिए। तो लोगों ने मशवरा दिया कि इसको लेकर के तुम जो है बादशाह वक्त के पास जाओ, हो सकता है वही सही मानों में इसकी जो है कीमत दे सकता है। अब वो हीरा पाने वाला शख्स हीरे को फरोख्त करने के लिए बादशाह वक्त के दरबार में जाकर के दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खटखटाने के बाद वजीर आते हैं, बड़े बड़े अक्लमंद आते हैं, दानिशमंद आते हैं और उस हीरे की कीमत लगाते हैं। वजीरों ने कहा, बादशाह सलामत, इस हीरे की कीमत इतनी है कि आपके तख्त ताज बिक जाएंगे और तख्त ताज भी आप दे देंगे तो इस हीरे की कीमत अदा न होगी। बादशाह वक्त ने ऐलान किया कि जिस सूरत में भी चाहिए ये हीरा हमें चाहिए तो चाहिए, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़े। बड़े बड़े जो आज के दौर में हुक्मरान होते हैं, ये अलग बात है, वो जाहिल होते हैं, लेकिन उनके मशावरती और मुशीर जो होते हैं, उनके दाएं बाएं जो लोग होते हैं वो बड़े डिग्री होल्डर होते हैं, वो बड़े एजुकेटेड होते हैं, बड़े तालीम याफ्ता होते हैं। ये आज के जमाने में नहीं, पहले भी ऐसे ही होता था। भले से कोई अगर अंगूठा छाप है, अगर वो एक बड़े ओहदे पे है, तो जब वो अपने नीचे रखता है तो बड़े तालीमदा और बड़े इल्मदा तालीम याफ्ता लोगों को रखता है। बादशाह वक्त ने अपने खुसूसी जो उसके वजीर थे उन लोगों को तलब किया। उसमें से एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, एक रात का वक्त दीजिए, ये हीरा आपके कदमों में होगा। बादशाह वक्त ने कहा कि जिस तरह से भी हो ये हीरा मुझे चाहिए। वजीर ने उस हीरे वाले को बुलाया और कहा कि देखो ये हीरा हम लेंगे और इसके बदले में तुझे हम क्या कुछ देंगे, बस इस बात से तुम अंदाजा लगा लो, ये बादशाही खजाना है, ये बादशाह का महल है और इस महल में सुबह को तुम आना, हर दरवाजा तुमको खुला हुआ मिलेगा और जिस दरवाजे से दाखिल होकर के जो कुछ तुम सरमाया निकालना चाहते हो निकाल लेना, लेकिन एक शर्त के साथ कि तुम्हें सुबह से लेकर के शाम तक, यानी तुलुए आफ्ताब से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक मुकम्मल तुझको मौका दिया जाएगा
और इस लम्हे में, इन औकात में जितना कुछ तुम बादशाह वक्त के शाही खजाने से जो कुछ माल निकालना चाहो निकाल लेना, वो तुम्हारा हो जाएगा। और बादशाह के महल का कोई भी दरवाजा तुम्हें बंद नहीं मिलेगा, सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, और जिस दरवाजे से तुम दाखिल होना चाहोगे हो जाओगे। कोई तुझे रोक टोक, कोई ममानियत और कोई मना करने वाला ना होगा। वो खुश हो गया कि शाही खजाने के सारे दरवाजे मेरे लिए खोल दिए जाएंगे। वजीर ने कहा, हीरा लाओ और अपने वक्त पे सुबह को चले आना। अब ये हीरा दे करके साहब हीरा जो है वापस जाता है, अपने घर को जाता है, अपने हुजरे में जाता है, बिस्तर पे जाता है। लेकिन आपको या हमें या दुनिया के किसी शख्स को अगर मालूम हो कि हमें कल एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है, तो उसे कब सुकून की नींद रात को आती है, बेचैनी ही बेचैनी होती है। जिस तरह से आज आप देखें, आज गिनती हो रही है बिहार में, हमारे पड़ोसी सूबे में, लेकिन जरा गौर कीजिए कि गुज़िश्ता शब कौन शख्स सोया होगा जो एक उम्मीदवार बन करके बैठा होगा? कोई नहीं सोता। और इसी तरह हमें और आपको भी अगर कोई चीज मिले तो रात को नींद नहीं आती। साहब हीरा जो अपने घर जाता है, रात भर बेचैन रहता है, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट, इसलिए कि सुबह तुलूए आफ्ताब के बाद फौरन हमें शाही खजाने में जाना है और बादशाह के महल में दाखिल होकर के बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है। अल्लाह अकबर। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या नसीहत की, इस वाक़े से जरा गौर कीजिएगा। सुबह रात भर बेचैनी के आलम में आहिस्ता आहिस्ता शब जो है गुजरती है, और सुबह को जब वो उठता है, उठने के बाद दौड़ लगाता है बादशाह के महल की जानिब और जाता है और देखता क्या है, सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं शराइत के मुताबिक और वादे के मुताबिक। अब वो चाहता है कि चलते हैं, एक दरवाजे से दाखिल होते हैं। अब वो हीरे का मालिक एक दरवाजे से दाखिल होता है, देखता क्या है, जिस तरह से आज हम बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, कपड़े के शोरूम में जाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा, एक से एक ब्रांड मौजूद होता है, और हम उसमें चूज करते हैं, पसंद करते हैं, ये ले लें ये ले लें। वो शाही महल में जब जाता है तो सबसे पहले जिस दरवाजे से दाखिल होता है उसको लिबास नजर आते हैं। वो एक से एक लिबास उठाता है, अपने ज़ेरे तन करता है, ये गुमान करता है अभी हमारे पास बहुत सारे वक्त है, अभी तो सुबह से सवेरा ही हुआ है, देख लेते हैं, चंद लिबास ले लेते हैं, लिबास को मलबूस करता है, अपने जिस्म में पहनता है, उतारता है, और शीशे के सामने जाकर के बिल्कुल शहजादा बन करके नजर आता है। चंद कपड़े उसने अपने ख्वाहिश के मुताबिक जमा किया, और उसके आगे जब बढ़ता है तो देखता क्या है, बेहतरीन दस्तरखान पे बेहतरीन जो है खाने जो है लगाए गए हैं, किस्म किस्म के ग़िज़ा मौजूद है जो कभी ना देखा था, वो भी वहां मौजूद है। अब वहां बैठ जाता, कहता अभी सुबह का सवेरा है, थोड़ा शिकम शेर होकर के कुछ खा लेते हैं। यहाँ कुछ वक्त उसने कपड़े में लगाए और कुछ वक्त जो है शिकम शेर होने में और अपने पेट को भरने में लगाया, और खाना जब खूब खा लिया, कभी इस पे हाथ मारता कभी उस पे हाथ मारता, खूबसूरत ग़िज़ाएं, बेहतरीन ग़िज़ाएं, लजीज ग़िज़ाएं खा करके जब शिकम शेर हो जाता है तो फिर जो है अगले दरवाजे में जब दाखिल होता है तो देखता क्या है, बेहतरीन जो है कालीन और बेहतरीन बिछौने लगे हुए हैं, बेहतरीन बेड पे जो है चारों जानिब गुलाम पंखे झड़ रहे हैं, पंखे जो है झल रहे हैं। अब वो देखता क्या है कि बेहतरीन बेड लगा हुआ है, कालीनें बिछी हुई हैं, मखमल की तरह जो है बिस्तरे हैं। अब इस पे क्यों ना थोड़े लम्हे आराम कर लिए जाए। पहले तो उसने कुछ वक्त कपड़े में लगा दिए, कुछ शिकम शेर होकर के खाना खा लिया, अब उसे तो नींद तो आनी थी। अब वो जब जाकर के उस बिस्तर पे लेटता है तो लेटने के बाद जो है बिल्कुल उसको ऐसी नींद आती है, और ऐसी नींद आती है कि अभी सुबह का सवेरा ही था। उसने चाहा कि चंद लम्हे हम सो लेते हैं, उसके बाद अभी पूरा शाही खजाना भरा हुआ है, कुछ न कुछ तो निकाल ही लेंगे, सारे दरवाजे खुले हैं, हमारे पास वक्त बहुत है, अभी तो सुबह का सवेरा है, अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन कौन जानता है कि वक्त कैसे गुजरता है, किसको मालूम कि हम कल तक जो है 18 साल के थे, आज 32 साल के हो गए, किसको मालूम कि हम 20 साल के थे, देखते देखते हमारी उम्र 70 साल को पहुंच गई। जरा आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको मालूम होगा, हाय अभी तो हमने कुछ हासिल ही नहीं किया, अभी हमने तो कुछ जमा ही नहीं किया, हमारी उम्र जो है 70 को पहुंच गई, हमने तो कुछ काम ही नहीं किया, हमारी उम्र 60 को पहुंच गई। अब वो साहब हीरे का मालिक जो है सो गया
اور सोने के बाद ऐसी नींद आई, और आनी भी थी जब इंसान शिकम से होकर के खाता है। बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि पेट भर के खाना हिकमत से खाली कर देता है। इसीलिए दरसगाहों में पढ़ने वालों को और किसी भी एतबार से इल्म हासिल करने वाले को किसी भी वक्त जो है एक शिकम सहरी के साथ जब इंसान खाना खाता है तो उसकी दानाई मरती हुई नजर आती है, उसका अक्ल शऊर काम करना बंद कर देता है, उसके ज़हन व फिक्र में नींद का गलबा हो जाता है। अब वो हीरे का मालिक सो जाता है और सोने के बाद ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि वो जब सोया रहा शाम को खुदाम आकर के उसको जगाते हैं, झिंझोड़ करके उठाते हैं और कहते चल निकल जा बाहर। उसने कहा भाई अभी बाहर क्यों निकलना, अभी तो हमने कुछ जमा ही नहीं किया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब वो अफसोस करने लगा। लोगों ने धक्का देकर के दरवाजे से बाहर किया और कहा कि तुम्हें जो वक्त दिया गया था कि तुलूए आफ्ताब से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक तुम जितना कुछ चाहो ले लेना, लेकिन है अफसोस कि तुमने चंद लुक़मे खाने पे अपने पूरे वक्त को जाया कर दिया और तुमने जो है इस आशाइश में पढ़ करके अपने वक्त को जाया कर दिया। जरा इस वाक़े से आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स को एक दिन पूरे दिन तक खजाने में दाखिल करके छोड़ दिया जाए और फिर उस खजाने से वो कुछ हासिल न कर पाए, उससे बड़ा बदकिस्मत और बदनसीब कौन हो सकता है। फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें जो है चंद साल की ये जिंदगी मैसर करे और हमें जिंदगी दे और ये भी बता दे कि हम एक वक्त तक तुमको यहाँ रखेंगे, उसके बाद तुम्हें आखिरी वक्त ऐसा आएगा कि जब फरिश्ता आएगा मौत का वो रूह निकाल लेगा। तुम चाहोगे कि हम 2 रकात नफल की नमाज अदा कर ले, कहेगा अब वक्त नहीं है। तुम चाहोगे कि एक तस्बीह हम सुभान अल्लाह की विर्द और वजीफा कर ले, कहेगा वक्त नहीं है। तुम चाहोगे कि फला वक्त में नमाज के टाइम है नमाज अदा कर ले, फरिश्ता कहेगा वक्त नहीं है। तुम चाहोगे कि अभी हमने तो कुछ किया नहीं, अपने दोस्तों अहबाब से मुलाकात कर ले, कोई इज़राइल कहेगा अभी वक्त नहीं है। इसलिए कि वक्त मुकर्रर पर आता है, हमें और आपको ये मालूम नहीं है कि किस मकाम पे हमारी चलते हुए सांस की डोरी टूट जाए और हम भी उसी गफलत में जिस तरह से वो हीरे का मालिक गफलत की नींद सोता रह गया और सुबह से लेकर के शाम तक के वक्त को यूं जाया कर दिया, कहीं हम और आप भी इसी तरह से अपने इस वक्त को जाया न कर दें, हम नेक अमल कर लें। इसलिए कि अल्लाह वहदहू शरीक कुरान में इरशाद फरमाता है, सूरह मुल्क की दूसरी आयत करीमा है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वही रब है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा फरमाया और जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा फरमाया कि अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम्हें हम आजमाएं, तुम्हारी जांच करें कि तुम में कौन है जो अच्छा अमल करने वाला है। याद रखिएगा बड़े अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु तस्लीम इस रूए जमीन पर आए, बड़े बड़े लोग आए और बड़े पाकबाज लोग और बड़े जो है अक्लमंद लोग और बड़े दानिशमंद लोग, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह वहदहू ला शरीक का जो फैसला है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। याद रखिएगा इस आयत करीमा से हमें और आपको कोई खौफ ज़दा नहीं करता, लेकिन इतनी नसीहत जरूर करता है कि हमारे और आपको जो जिंदगी दी गई है इस जिंदगी में कुछ अच्छा अमल कर लें, वरना कब्र की मंजिल बड़ी कठिन मंजिल है। आखिरी बात करके मैं रुखसत हो जाता हूँ। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला के नमाज जनाजा जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद एक मकाम पे बैठ जाते हैं। कब्र की तैयारी में थोड़ी ताखीर थी, अभी मुकम्मल कब्र तैयार नहीं की गई थी, तो है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नमाज जनाजा पढ़ाया और एक मकाम पे बैठ गए और बैठने के बाद एक तिनके उठाया और जमीन को आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरेदने लग गए, जमीन को कुरेदने लग गए। सहाबा किराम का मजमा था, लोग सहाबा किराम समझ रहे थे अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाहें बुलंद फरमाएंगे, अपने सर को नीचे से उठाएंगे, कुछ फरमाएंगे, लेकिन सहाबा किराम के मजमे ने ये मुलाहिजा किया और देखा, मुशाहिदा किया कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जब जमीन पर बैठ करके तिनके से जमीन को कुरेद रहे थे, तो उसके बाद जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को जब बुलंद किया तो सहाबा किराम ने देखा कि आंखों में आंसुओं की कतरात और आंसुओं के सैलाब जारी थे और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चेहरे पे खौफ महसूस कर रहे थे और फरमाया ऐ लोगों इस कब्र की तैयारी कर लो, ये ऐसी जगह है जहां कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, हमें और आपको भी वहां जाना है। इसलिए अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला के ज़ीन में
یہ یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا ہے، پھر ہمیں پیدا فرمایا ہے صرف اور صرف اس لیے ایکم احسن عملا کہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر کے ہوش و خیرت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیشانیوں میں سجدے کی طرف عطا فرمائے، اور مساجد اور مدارس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپسی اختلافات سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کے بارگاہ میں توبہ گو مولا تبارک و تعالی بولنے میں خطائیں میں سے بھول چکی ہوں اپنے فضل کا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔